Hello students. So today in this chapter 3 human reproduction we will study the third topic of the chapter. We had already discussed male reproductive system, female reproductive system, and in the last class we had discussed about the gametogenesis, how the gametes are formed. Now in this class we will study about the menstrual cycle. ठीक है? Now what the term understand by the menstrual cycle? The reproductive cycle. Okay, menstrual cycle is the reproductive cycle in the female primates like monkeys, apes and human beings. This reproductive cycle is known as menstrual cycle. Okay, now the first menstrual cycle में भी two parts है. एक आपके menarche होता है and second one is the menopause. ठीक है? This menstrual cycle is divided into two parts. First is your menarche and the second one is the menopause. Understood? What is the menarche and what is the menopause? Menarche is that stage in human females. The first menstruation begins at the puberty. The first menstruations which begins at the puberty, they are known as menarche. Means initiation of the reproductive phase is known as menarche. And menopause means cessation of the menstrual cycle or cessation of the menstrual. Means after that no menstruation will be there. That particular phase is known as the menopause. This menarche begins at puberty. It begins at puberty means it vary to person. Okay. In some female it start at the 12 years of age. In some it start from the 15 years of age. So this menarche may vary the age between the 12 to 15 years of age. Menopause means cessation of the menstrual cycle. Its age is 45 to 50 years of age. It also vary person to person. It may end at 45 years. It may end at in between 45 to 50 years. It initiates the menarche क्या होता है? ये initiates करता है reproductive phase को. And menopause it stops the reproductive phase. Okay. Now let's discuss about the events which are taking place in menstrual cycle and how the menses takes place. So in human females, menstrual cycle is repeated at an average interval of 28 or 29 days. In every 28 or 29 days, means the cycle is around 28 to 35 days. Okay? So in every 28 to 29 days, your cycles get repeated. And the cycles of events starting from one menstrual till the next is called as menstrual cycle. Understood? One in this phase means in this events, one ovum is released. So the ovum which are released during menstrual cycle is known as ovulation and it released at the middle of the cycle. अगर आपका 28 to 35 days का cycle हो रहा है means in the middle of this cycles means about in 14 or 15 days your ovum is released. So releasing of the ovum is known as ovulation. Now we will see the step by step that how the menstrual cycle takes place. Before going through this menstrual cycle, it may get affected by stress. It may get affected by anxiety. Okay. If there is menstrual cycle takes only when egg is not fertilized. Unfertilized egg leads to the menstrual cycle. Now, why the menstrual cycle is essential? What is the requirement of this? It is essential because of the production of the oocytes and because it is essential for the preparation of the uterus for the pregnancy. ठीक है? तो ये essential क्यों है? First is essential for the production of the oocyte and second it is essential for the preparation of the uterus for the pregnancy. These two reasons the menstrual cycle is important or it is essential. ठीक है? Now let us discuss about the different phases of this cycle. There are 4 different phases. First phase is the menstrual phase, followed by follicular phase, followed by ovulatory phase and then luteal phase. Okay, through this diagram I will tell you how from the first to 28 days these all 4 phases takes place. ठीक है? तो हम one by one देखते हैं menstrual phase में क्या होता है, follicular phase में क्या होता है और आगे के phases में क्या होते हैं. जो आपका menstrual phase है, ठीक है, this phase lasts for about 3 to 5 days. ये phase चलता है. In a 28 days menstrual cycle, the menses takes place around 3 to 5 days. In this phase, how this menstrual flow takes place? See, this is your uterus. Okay, this is your uterus. So when menses flow starts, it's around about 1 to 5 days. Means okay 7 days तक हम लेके चलते हैं इसे.
अबाउट 7 डेज में ये जो हमारा फेज होता है ये पहला फेज है जिसको कि हम मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं। यहाँ पे यूट्राइन वॉल्स जो है इट गेट स्टार्ट रप्चरिंग और इट्स गेट स्टार्ट लॉस्ट। जो आपके यूट्रस का एंडोमेट्रियम वॉल होता है इट स्टार्ट्स गेटिंग ब्रेकिंग और स्टार्ट गेटिंग लॉस्ट। So due to the breakage of the endometrium wall, there is a release of some mucosal or there is a release of the blood through the vagina, and that is known as your menses. Okay, due to the loss of the endometrium lining of the uterus, the blood and the mucosal comes out through the vagina, and this is known as the menses. ठीक है, ये uterine events में होता है during first to 7 days. तो first to 7 days में आपका पहले क्या हो रहा है, ये 28 डेज में ये लास्ट रहता है 3 to 5 डेज. देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ द योर breakdown of the endometrium lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out. The withdrawal of this LH hormone, the withdrawal of, and in this case also अगर हम ये हमारी बात हुई यूट्राइन की इवेंट्स की, यूट्राइन इवेंट्स में क्या हुआ, इसमें ब्रेक डाउन हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका ओवरियन हार्मोन का उस समय क्या लेवल होता है. तो एट द लेवल ऑफ द ओवरियन हार्मोन्स, दो एक पिट्यूटरी हार्मोन्स भी है, यहाँ पे LH है और FSH है. तो इन सभी का भी रोल है. जो आपका LH है, द प्रोडक्शन ऑफ द LH इज रिड्यूस्ड. यहाँ पे देखो आपका LH का प्रोडक्शन बिल्कुल रिड्यूस्ड है. प्रोजेस्ट्रॉन बिल्कुल रिड्यूस्ड रहता है, एकदम कांस्टेंट है प्रोजेस्ट्रॉन. तो प्रोजेस्ट्रॉन का भी लेवल लो रहता है. LH सिक्रीशन, LH मींस व्हाट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, दिस LH प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से इसका सिक्रीशन होता है LH का, इट गेट्स रिड्यूस्ड. ओके, the withdrawal of this LH causes the degeneration. मीन्स अगर आपका LH का लेवल कम है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसमें कम रहता है और एंडोमेट्रियम की आपका ब्रेकिंग ऑफ होता है. तो ये सारे फेजेस किस में होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेजेस में. तो इस डायग्राम के थ्रू याद रखना कि ये 3 to 5 डेज रहता है. यूट्राइन इवेंट्स की हम बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग. ओवरियन हार्मोनल लेवल्स की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दे रिमेन्स रिड्यूस्ड और दे रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, if we talk about the pituitary hormones level, then the level of the LH or level of the luteinizing hormones get reduced. ठीक है, and this is all are the characteristics of the first phase. अब हम जाते हैं सेकेंड फेज में, that is the follicular phase. ये जो follicular phase होता है, this this follicular phase includes the cycle 6 to 13 days or say 7 to 13 days. ठीक है, ये आपका 7 भी इंक्लूडेड रहता है. इट्स में वेरी, किसी पीपल में 7 डेज तक जाता है, किसी में 6 डेज तक जाता है. तो जो 7 डेज to 13 डेज की साइकिल होती है, ये सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो, मतलब सेकेंड फेज स्टार्ट होता है आपका. ठीक है, ये फर्स्ट फेज हुआ. सेकेंड फेज हमारा क्या है, फॉलिक्यूलर फेज. इस फेज में जो एंड्रोमेट्रियम वॉल हमारी लॉस्ट हुई थी फर्स्ट फेज में, दे स्टार्ट गेटिंग थिकेंड अप. इस फेज में हमारा जो एंड्रोमेट्रियम वॉल है दे गेट्स थिकेंड बाय 2 to 3 mm. ठीक है, वो 2 to 3 mm थिक होने लगती है. एंड दिस फॉलिकुलर फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स. यहाँ पे देखो यूट्राइन इवेंट्स में हमने क्या पढ़ा कि अब यूट्रस के वॉल्स देखो ये थोड़ी थिक हो रही है, मीन्स इट गेट्स थिकर 2 to 3 mm. अंडरस्टूड. व्हेन वी गो टू द ओवेरियन इवेंट्स, अगर हम ओवेरियन इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का. आपने पढ़ा था ना, प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स पे बदलना, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल्स में और टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल्स विच इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल्स. तो ये जो डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल्स टू द ग्राफियन फॉलिकल, इट्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज. अंडरस्टूड. ये आपके फॉलिकुलर फेज में ही डेवलपमेंट होता है. तो द फॉलिकुलर, कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल के लिए, obviously your follicular stimulating hormones. So FSH, which is secreted by the anterior lobe of the pituitary gland, it stimulates the ovarian follicle to secrete estrogen. ये ovarian को बोलते हैं estrogen secrete करने के लिए. ठीक है, so the endometrium becomes thicker by rapid cell multiplication and this is accompanied by increase in your uterine gland and blood vessels. तो इसमें बस ये चीज ध्यान रखो
आपको कि हमारे ये जो डेज होता है इसका 7 to 13 डेज होती है। अगर हम ओवरियन हार्मोनल लेवल्स की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसमें भी कम रहता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज रिमेन्स कांस्टेंट बट द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन इज समवॉट हाई। एस्ट्रोजन थोड़ा सा हाई रहता है। ओवरियन इवेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैचुरेशन होती है फॉलिकल्स की। फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल्स इट मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स। और यदि हम पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स की बात करें जो हमारा FSH है, दिस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये यहाँ पे सिंथेसिस ये हार्मोन क्या करते हैं, सिक्रीट होता है which stimulates the ovarian follicle to secrete the estrogen. Understood? So this is all about the second phase. अब हम थर्ड फेज की बात करते हैं। ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज इज ऑल्सो नोन एज योर ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन ऑलवेज हमारा 14th डे में होता है। ठीक है, ये जो आपको मिड ऑफ द साइकिल दिख रहा है, ये साइकिल की इस फेज का जो मिड फेज होता है मीन्स अराउंड 14th डे और 15th डे। ठीक है, इन 2 दिनों में जो फेज होती है उस फेज को हम ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर ओव्यूलेशन फेज ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स था ये क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा तो उसके विदिन हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी oocyte थी जो कि फॉर्म करती है तुम्हारी ओवम को। ठीक है, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है। तो दिस ओवम गेट्स रिलीज्ड। So the releasing of the ovum, it takes place in the 14th day of the cycle or it takes place in the ovulation phase. And in this, your level of the FSH is decreased and LH becomes increased. ठीक है, FSH आपका decreased हो जाता है और LH क्या हो जाता है, increase हो जाता है and they get attain the maximum level. यहाँ पे जो LH की level रहती है वो बिल्कुल मैक्सिमम रहती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि यूट्राइन इवेंट्स में ये जो आपका यूट्राइन का जो वॉल्स ये और थिक हो जाता है। यहाँ पे तो 2 to 3 mm थिक होता है, लेकिन जब हम ओव्यूलेटरी फेज की बात करते हैं तो इट बिकम्स मोर थिकर। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरियन हार्मोनल लेवल्स, तो आपके ओवरियन इवेंट्स में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकुलर्स बना था वो रप्चर हो जाते हैं, FSH का लेवल कम हो जाता है, LH का लेवल बहुत बढ़ जाता है, दे अटेंड देयर पिक लेवल। ओके, एंड सो दिस इज बोथ। यहाँ पे LH का लेवल भी कम हुआ, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो आपके कम बढ़ रहे हैं, FSH कम हो रहे हैं, लेकिन दोनों अपने लेवल पे हाईएस्ट है। FSH का सिक्रीशन जो है फॉलिकुलर फेज में ज्यादा रहता है, बट इस फेज में एज कंपेयर टू फॉलिकुलर फेज ये कम रहता है, बट दे बोथ अटेंड देयर मैक्सिमम पिक। मतलब FSH भी बहुत मैक्सिमम पिक पे रहता है और LH भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम पिक पे रहता है। ठीक है, तो ये आपका वो यहाँ पे एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। तो देखो आपका क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, LH जो कि सबसे ज्यादा लेवल पे हाई होता है। FSH की बात करें, ठीक है, ये एज कंपेयर टू फॉलिकुलर फेजेस की सिक्रीशन कम रहती है, लेकिन तो भी ये अपने इसमें मैक्सिमम पीक एज पे जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन के लेवल की बात करें तो एस्ट्रोजन भी हमारा ओव्यूलेशन के फेज में क्या रहता है, हाई रहता है। तो इन सबको ध्यान देना, किन किन का सिक्रीशन ज्यादा रहता है। रैपिड सिक्रीशन LH इंड्यूस करता है। जब अगर बहुत ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाएगा और उनके रप्चर होने से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ओवम को रिलीज करवाने के लिए, दिस LH विल कॉजेज द ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी बातें थी ये ओव्यूलेटरी फेज की थी। क्या क्या पढ़ा हमने यूट्राइन इवेंट्स में, इट गेट्स मोर एंड मोर थिकर। ओवरियन हार्मोन्स की बात करें तो एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ओवरियन इवेंट्स की बात करें तो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होने की कंडीशन में रहता है। रप्चर कौन करवा रहा है, LH हार्मोन, क्योंकि वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है और उसके हाईएस्ट लेवल होने के कारण it will force the Graafian follicles to rupture, and when the Graafian follicle ruptures it releases the ovum, and this release of ovum is known as what, your ovulation। ठीक है, अब इसके लास्ट फेज में आते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज जो होता है वो हमारे 16th डेज, ये 15 डेज में ओव्यूलेशन हो गया, मतलब 17th डेज टू 28 और 29 डेज तक जो फेज रहता है वो 4th फेज रहता है। ठीक है, ये 3rd फेज था, ये जो फेज है वो हमारा 4th फेज है, दैट इज ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन तो अब हमारा हो गया। अब FSH क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द ओवरियन फॉलिकल्स टू सिक्रीट एस्ट्रोजन
एलएच स्टिमुलेट करता है कॉर्प। अब यहाँ पे ल्यूटल फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम। यहाँ पे डेवलपमेंट होती है कॉर्पस ल्यूटम की। सो ल्यूटल फेज का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ योर कॉर्पस ल्यूटम। अब नीचे से देखो, अगर हम यूट्राइन इवेंट्स की बात करें तो अब यहाँ जो यूट्राइन वॉल्स है ये और थिक होने लगती है, ठीक है, मोर देन 5 mm इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। आप खुद देख रहे हो कैसे यूट्राइन का वॉल्स थिक होते जा रहा है। इट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, ठीक है, वो पूरे अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है। इट बिकम्स थिकर। सेकेंड थिंग्स, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल अब तक बिल्कुल कांस्टेंट था वो अचानक आके इस फेज में बढ़ जाता है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा ओवम रिलीज हो गया है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम। अब देखो, अगर आगे जाके फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटम जिस स्टेज में है वेल डेवलप्ड वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटम धीरे धीरे डिजेनरेट होना शुरू कर देता है। और जब कॉर्पस ल्यूटम धीरे धीरे डिजेनरेट होगा तो फिर हमारा एंडोमेट्रियम वॉल फिर से रिपीट ये साइकिल में आ जाएगा, मतलब फिर वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है और फिर इसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक होने लगती है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से इसका फिर से नया साइकिल फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि इसमें क्या हुआ? ल्यूटल फेज में सबसे पहले हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटम का डेवलपमेंट होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटम वेल डेवलप्ड रहेगा, बट इफ फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर देन इट विल गेट रप्चर्ड एंड देन इट्स साइकिल विल बी रिपीटेड, ठीक है। अब ये जो मैंने पूरी फेज बताई ये आपको एक फ्लो चार्ट से समझ में आ गया कि कैसे कैसे हर एक का रोल है। यूट्राइन इवेंट्स में क्या हुआ, हार्मोनल लेवल्स का क्या हुआ, ओवरिन इवेंट्स में क्या हुआ, कब एलएच बढ़ा, कब एफएसएच घटा। अब हम एक बार फिर से खाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसकी डिस्कस करते हैं कि मेंस्ट्रुअल में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर में क्या हो रहा है, ठीक है। इस डायग्राम से आपको मेनली समझ में आ गया कि क्या है। तो मेंस्ट्रुअल फीचर्स का अगर आपसे पूछता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखना, पहला ये लिखना कि it lasts about 3 to 5 days. Second, in this, the cells of the endometrium, secretions of the blood, unfertilized events, this all constitute the menstrual flow. Here the endometrial lining gets break off and the production of the LH from the anterior lobe of the pituitary gland is reduced. ये सब आपका हुआ menstrual phase में। फिर हमारा आता है सेकेंड फॉलिकुलर फेज में। इसके बारे में अगर पॉइंट्स अगर आपको लिखने की मेंशन हो रहा है तो इसमें ये मेंशन करना कि ये लास्ट होता है 6 to 13 डेज तक, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं? स्टिमुलेट करता है ओवरियन हार्मोन्स को कि वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करे। एस्ट्रोजन क्या करेगा? जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम वॉल्स है उसको प्रोलिफरेट करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम और ज्यादा थिकर हो जाता है 2 to 3 mm। अंडरस्टूड? यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्रेफिन फॉलिकल तक। फिर आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एलएच एफएसएच दोनों अपने मैक्सिमम लेवल पे चले जाते हैं और ये मिड ऑफ द साइकिल में होता है, दैट इज अराउंड 14 और 15 डेज। अंडरस्टूड? रैपिड सिक्रीशन होती है एलएच की विच कॉजेज द रप्चर ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल्स एंड रिलीज द ओवम। सो एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओव्यूलेशन। फिर हमने ल्यूटल फेज पढ़ा कि ये आपके 16 to 28 डेज में होता है। कॉर्पस ल्यूटम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड्रोमेट्रियम थिकर हो जाता है, यूट्राइन ग्लैंड्स बिकम सिक्रेटरी हो जाता है क्योंकि इसी फेज में यूट्राइन ग्लैंड अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रेगनेंसी की अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये यूट्राइन जो है यूट्रस है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेगा और यदि नहीं हुआ तो वो फिर से उनका ब्रेकिंग ऑफ शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने बात की थी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये स्टिमुलेट करता है ओवरियन फॉलिकल्स को, ठीक है, नाम ही बता रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, मींस इनका रोल किस में होगा? ओवरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सके। एलएच किसे स्टिमुलेट करता है? कॉर्पस ल्यूटम को, ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करे। तभी तो जब कॉर्पस ल्यूटम का डेवलपमेंट हुआ तो आपने देखा ना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कितना ज्यादा हाई हो गया, बिकॉज एलएच स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटम टू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ योर एस्ट्रोजन। अंडरस्टूड? एलएच कॉजेज द ओव्यूलेशन, ये क्लियर था। प्रोलिफरेटरी फेज इज कॉज्ड बाय द, आपको प्रोलिफरेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था।
सिक्रेटरी फेज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सिक्रेटरी फेज में आपका प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन ज्यादा रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट. वन मोर थिंग, अगर प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerates and this degeneration causes the endometrium, leading to the menstruation, means marking a new cycle. So in human being ये कब सीज होता है? अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज में सीज होता है, जिसे कि हम मीनोपॉज बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. एग्जाम्स में अगर आता है आप ये डायग्राम बना दीजिएगा. इन चारों फेजेस के बारे में चार चार पॉइंट्स भी लिख दोगे. मेंस्ट्रुअल फेज कब शुरू होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इस समय कौन से हार्मोन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. दैट इज इवेंट्स. अदरवाइज आप डायग्राम से भी बहुत इजीली समझ सक रहे हो कि कौन सा हार्मोन्स कब हाई हो रहा है, किसका सिक्रेशन कब हो रहा है. इतना ही इसमें पढ़ना है. दैट इज इनफ फॉर योर नीट लेवल ऑल्सो एंड दैट इज इनफ फॉर योर 11th examination also. ठीक है. In the next class we will study about the fertilization, implantation and parturition. Till here keep revising.